Hare Krishna बच्चों, thanks for joining. Hare Krishna. हरे कृष्णा। प्राची, सब लोग म्यूटेड है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा। Everyone, please write your name and in bracket, please write your city name. Like Dhara she wrote, na? Please, everyone. Yes, bro, we can start now. Yes. We can start. हम लोग शुरू करेंगे जप से as usual. Okay. So Janavi, you can come and start. You had something ready? So as usual, हम लोग जपा के बारे में, हरे कृष्णा महामंत्र का जप के बारे में जो हर शनिवार हम लोग करते हैं उसके बारे में जानवी पेश करेंगे. Every week we talk about japa. Thank you, Hare Krishna. Okay. प्रभु जी, हमें जम्मू में नेट की प्रॉब्लम है सर, हमें आपकी वीडियो शो नहीं हो रही. Said he can't see your camera. Someone said they can't see your camera. भार्गव को, भार्गव, Yes. भार्गव, अब आपको दिखाई दे, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? हाँ भार्गव. हाँ भार्गव, आपको वीडियो दिखाई दे रही है हमारी, जो हम लोगों ने पीपीटी शो की है, वो आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही. तो आप ऐसे कीजिए, आप एक बार लीव करके दोबारा से फिर ज्वाइन कीजिए. ठीक है भार्गव बेटा? मैम हमारे यहाँ पे जम्मू में नेटवर्क की प्रॉब्लम है. 2 GB चलता है, आई नो दैट, तो इसलिए आपको थोड़ी परेशानी हो रही है. आप कोई ऐसी जगह पे बैठिए अपने घर के जहाँ पे आपका जो कवरेज एरिया अच्छा हो, नेट जहाँ पे अच्छा आता हो. भार्गव बेटा, मैम मैं उधर ही बैठी हूँ. अगर बाय चांस नहीं होगा, इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ ना, तो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, फिर आप देख सकते हो. ठीक है भार्गव? ठीक है. Good. Yes, we can start, Janvi. Okay. Very well. So today I'm going to list 10 benefits of chanting. So one of the first benefits of chanting is that it dissolves our bad habits, our evil thoughts, and all of our negative emotions. The second benefit of chanting is that it gets rid of our fear, our stress, and our anxiety. The third benefit of chanting is that it helps us achieve many great things in our lives. The fourth benefit of chanting, like many things in our lives, like going to get an education to help us connect to Krishna so that we can pursue our life nicely. And then we have the fourth benefit of chanting is that it brings us the highest state of ecstasy, which allows us to connect to Krishna in a better way. And then the fifth benefit of chanting is that it brings us joy, peace, and happiness within ourselves. We have the sixth benefit of chanting, which is it relieves us from all of our miseries in the material world. We have the seventh benefit of chanting, which is it gives us divine-like qualities such as love, mercy, and inner happiness. And then we have it purifies ourselves and our surrounding environment. And then finally, it cleans our mind and our heart. And then lastly, it allows us to clear our consciousness as well, which allows us to discover our true self. And in this way, we'll be able to break ourselves away from this endless cycle and the attachment to the physical world. And Srila Prabhupada says, the whole world is suffering for want of God consciousness. So it is the duty of all religions, sects to teach this simple art of chanting Hare Krishna. Okay, so now let's please chant. So we have the bead bag over here. You take your
thumb and your middle finger, and you hold the first bead. And then we say Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachayane Nirvishesha Sunyavadi Pastata Deshatayane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Deta Gadadhar Shri Sadi Gaur Bhaktavinda. And then you chant and you pull the beads inwards towards your fingers. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare बच्चे Krishna, अपने आप Hare को अनम्यूट करके भी साथ में Hare चैंटिंग कर Hare सकते हैं Ram, अब, Hare Ram, ठीक है? Ram Ram, Hare Hare. हरे Hare कृष्ण Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Ram Hare Ram, Ram. Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, हरे Hare Krishna कृष्ण Krishna, Krishna, हरे Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Ram, Krishna Ram Krishna Ram, Krishna Hare Hare Hare. Hare Ram Hare Ram Hare Ram Krishna, Ram Krishna Hare Krishna, Hare 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 Hare, Hare 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 Ram Ram, Hare Hare. Ram 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 Hare Hare Ram, Hare Ram Hare Ram, Hare Hare Hare, Ram Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram Krishna, Ram Krishna Hare Krishna, Hare Hare Ram Hare, Hare Hare Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Krishna Hare Hare Krishna, Ram Hare 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 Hare. Krishna, Ram Hare Hare Ram Krishna, Hare Krishna Ram Hare Krishna, Ram Hare Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Hare हरे Krishna, Krishna कृष्ण Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Hare. Krishna Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Ram Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Jai Krishna, Jai Ram Hare Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Ram Krishna Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, बोलो Ram कि Ram, Hare. म्यूट कर लेना बच्चों Hare को ताकि Krishna, वो Hare Krishna, महामंत्र Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram Hare Ram, Hare. Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Ram, Krishna, Hare Ram, Hare Ram Hare Ram, Hare. Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. आवाज नहीं आ रहा है Hare सब लोग Krishna, Hare म्यूट Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna Hare Ram, Krishna, Ram Hare Ram, Ram, Hare. Ram Ram, Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare 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 Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare Hare. Ram, Ram Ram, Hare Hare अभी Krishna, Hare आपके Krishna, Hare पास Krishna Krishna, Krishna, Hare एक Krishna, Hare सेकंड Hare Krishna Ram, Krishna, Hare आपका Ram, Hare Ram Hare Ram, मेन Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare अपनी Hare तरफ Ram, से Hare Ram, Ram आप Ram, Hare. फोर्सफुली किसी को म्यूट अनम्यूट नहीं कर Hare सकते Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare और Ram, Ram Ram, Hare. Hare किसी को Krishna, आवाज कर Hare सकते Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, हैं Hare ये भी Ram, पता Ram चलेगा Ram, कि Hare. वो लोग जब कर रहे हैं नहीं जब कर रहे हैं Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare चलो Hare ठीक है Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare हरे Krishna, कृष्ण Hare हरे Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare हरे Krishna, कृष्ण Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare हरे Ram, Ram कृष्ण Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे Hare कृष्ण Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, हरे Ram Ram, कृष्ण Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे Krishna कृष्ण Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare हरे Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare हरे Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare.
Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna 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 I think one round Krishna completed Hare Ram by the kids. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Shri Krishna Chaitanya. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Rita Gadadhar Shri Sadi Gaur Bhaktivinoda. Thank you for chanting today. Thanks, Janvi. हरे कृष्णा एवरीबॉडी, हरे कृष्णा सब लोगों। और आज हमारे जो कार्यक्रम है श्रीमद् भागवतम के बारे में हमने जो शुरू किया था पिछले हफ्ते, whatever we started next week, we're going to complete this week. So this is the last part of the Srimad Bhagavatam. We're going to discuss about the history of Srimad Bhagavatam and the Vedic scriptures. और हम लोग जो पोस्ट किया था गूगल क्लासरूम में, आप लोगों को अब इस पावर पॉइंट के बाद में हम लोग थोड़ा गूगल क्लासरूम के पास जा करके
थोड़ा चेक करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने काफी हिमांशु is Himanshu here? I can't Yes, see. Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yeah, you did a very good job explaining, and I would like to share, if with your permission, can I share with everybody what you Yes. mentioned? Yes, Yeah, very Prabhuji. good. Sure. Yeah, so we'll do that at the end of the presentation. We're going to share the work of the different students throughout the week. And I'll give you a chance to, and we'll have an activity also at the end. So coming to the, just like to recap what we did last week. हम लोग संक्षेप में हम लोग क्या किया, हम लोग भागवतम के बारे में काफी इंफॉर्मेशन शेयर किया भागवतम के बारे में। तो मेन चीज है कि भागवतम जो मेन शुरुआत में भागवतम was spoken by Krishna himself to Lord Brahma. So ये इंफॉर्मेशन 12 स्कंद में हमारे पास पूरा, आपको मौका मिले तो आप देखना, श्रीमद् भागवतम का पूरा सेट है। ऐसे आपको दिखाते हैं, ये भागवत का पूरा सेट होता है, इसमें 12 स्कंद होते हैं। किताब आप देख पाएंगे, पता नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो इसमें 12 कांटोस है जो प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया, 10वां तक किया, और श्रीला प्रभुपाद के शिष्य लोगों ने ट्रांसलेट किया। तो वी हैव लाइक 12 cantos of these like that. तो आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएंगे ये किताब पढ़ने के लिए। तो भागवत में इतना सुंदर सुंदर तस्वीरें भी हैं, आपको दिखाएंगे जो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को अलग अलग तस्वीरें, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य बनाए कि ये भागवत को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यास देव जी और ये नारद मुनि व्यास देव जी को संदेशा दे रहे हैं, देखो देख सकते हैं आप लोग। हाँ, तो हम कोशिश करना चाहिए, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को कि हम लोगों को तेज होना चाहिए थोड़ा भगवान के बारे में, जितने भी शास्त्र है और कैसे हम लोग इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे व्यासदेव जी ये ज्ञान अपने गुरु नारद मुनि से मिले थे, वैसे ही ये ज्ञान ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान से मिले, और कृष्ण भगवान जब ब्रह्मा जी को सुनाए, फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाया, और नारद मुनि ने व्यासदेव जी को सुनाया। तो ये चतुश्लोकी भागवत में के बारे में हम बातचीत किया था पिछले हफ्ते। और हम लोग ये भी बातचीत किए कि कैसे जो भागवत में ये जो चर्चा है भागवत का, ये अलग अलग समय में भागवत में पेश किए हुए हैं। It's been presented at different parts of the Bhagavatam, and it was spoken by different personalities. जैसे सुत गोस्वामी ने सनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाया, फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, फिर नारद मुनि ने व्यासदेव को सुनाया, फिर ब्रह्मा जी नारद मुनि को, फिर विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी को। तो ये सब भागवत में आते हैं ये कथा। तो इसलिए जब हम लोग भागवत सुनते हैं, ये बहुत प्रामाणिक शास्त्र है जो स्वयं भगवान से, भगवान का वाणी है। जैसे गीता भगवान का वाणी, भागवत भी ऐसा ही है। ऐसे ही हम लोगों को उसको धारण करना चाहिए। We have to receive that in that mood that is coming directly from Krishna, and the advantage is that we are having this knowledge through the disciplic succession from Prabhupada, Srila Prabhupada, who belongs to प्रामाणिक संप्रदाय से है। जो भी ज्ञान है, याद रखना, जो भी नॉलेज, जो भी आपको ज्ञान हासिल करना है, वो एक प्रामाणिक संप्रदाय से होना चाहिए। जैसे आप स्कूल जाते हैं, राइट, स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं, चाहे मैथ पढ़ेंगे, चाहे साइंस पढ़ेंगे, या जो भी पढ़ेंगे,
आप किताब के द्वारा, जो प्रमाणिक किताब के द्वारा आप चीज कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, राइट? तो वैसे ही शास्त्र भी ऐसा होना चाहिए कि हम प्रमाणिक गुरु से, एक रिकमेंडेड प्रेस्क्राइब्ड परंपरा से जो जेन्युइन है उससे सीखें। क्योंकि संसार में आप या इंटरनेट पर जाएंगे, गूगल में जाएंगे, आप बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे आप लोगों को, लेकिन उसका सोर्सेस भी देखते हैं। जैसे आप स्कूल में अगर आप ऐसे लिखेंगे, आखिरी में आप रेफरेंस देना पड़ता है। You have to make a reference and quote from where you get the source of the information. जब भी आप ऐसे लिखेंगे, आप सब 10th grade, 11th grade and 12th grade में आपको ऐसे तो लिखना ही लिखना है। लोग आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखेंगे आप लोग, तो आपको कोट करना पड़ता है, और जब आप कोट करेंगे आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। जो व्यक्ति ऐसे लिखते हैं उनको कम मार्क्स मिलते हैं स्कूल में। अगर आप एक साइंस प्रेजेंट करेंगे या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे या फाइनेंशियल अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखे, आप हमेशा रिफर करते हैं रिसर्च पे। वैसे ही शिला प्रभुपाद ने सब रिसर्च करके, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी का नाम है AC भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद। ये टाइटल प्रभुपाद जी को मिला, भक्ति वेदांता। जिन्होंने जैसे डॉक्टर, जैसे हम लोग PhD करते हैं, वैसे प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी एक संस्कृत स्कॉलर है, जिन्होंने पूरा ग्रंथ को निचोड़ करके हम लोगों को पेश किया। इसलिए इनको कहते हैं भक्ति वेदांता पर्पोज। अब श्रीमद् भागवत जब आप पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का, तो उसमें पर्पोज भी पढ़ेंगे तो आपको ये इसेंस मिलेगा वेद शास्त्रों से, उपनिषद से, श्रवंत्र उपनिषद से, ऋग्वेदा से, अथर्ववेद और जितने वैष्णव ग्रंथों से, all these different literatures you will get it through Srila Prabhupada. Because हमारे पास टाइम नहीं है कि जाकर के संस्कृत पढ़ना, फिर एक एक किताब, एक एक वेद को पढ़ करके then you get this knowledge. So that's why we are here to help all of you to understand the Srimad Bhagavatam in the Vedic literatures in a very easy way. So what we have to understand here, we have free retellings of the Srimad Bhagavatam, that the sum total of these free revelations make up the Bhagavatam as we know today. ये दो तीन वार्तालाप है और हिस्सा है भगवत का। ये पूरा जो आप भगवत में पढ़ेंगे वो आपको शमशेद में मिलेंगे। ये पहला चीज है वो जो वार्तालाप व्यासदेव जी और सुखदेव गोस्वामी के बद्रिक आश्रम में हुआ। दूसरा वार्तालाप है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, और तीसरा है रोमाशन ऋषि के जो पुत्र उग्रशव सुत, जो सुत गोस्वामी कहते हैं, वो सभा में सब ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य में वो कथा सुनाते हैं भगवत का। तो ये आप लोगों ने को मैंने क्विज पोस्ट किया था, काफी कुछ लोगों ने किया, कुछ ने नहीं ट्राई किया। तो क्विजी में जो प्रश्न थे इसी ऊपर, इसी चीजों पे थे, इसीलिए मैंने क्विजी पोस्ट किया था पिछले हफ्ते। फिर हमने भागवतम के कंटेंट्स के बारे में बातचीत किया कि कैसे भगवत में 18,000 श्लोक है, there is 18,000 verses in भागवतम, और कैसे अलग अलग टॉपिक्स भागवत पेश करते हैं। जैसे यूनिवर्सल क्रिएशन, सृष्टि का रचना कैसे हुआ, मैटेरियल मैनिफेस्टेशन, ये सब यूनिवर्सेस कैसे चला, जियोग्राफिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल्स ऑफ यूनिवर्स, ये पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड कैसे प्रकट हुए, ये इतने साइंटिफिक तरीका से भगवत इसमें बहुत डिटेल से दिए हुए हैं। और भगवान का कृपा क्या होता है ये भी बताया कि भगवान का नेचर क्या है, जीव तत्व का नेचर क्या है, और स्वभाव क्या है, और कैसे अलग अलग राजा उनके वंश कैसे चले, ये ह्यूमन जो हमारे मानव जाति का वंश है कैसे हुए, कैसे अलग अलग राजा हुए, अलग अलग डायनेस्टीज हुए, अलग अलग कुल हुए, ये कैसे प्रकट हुआ, कैसे अलग अलग तक आखिर तक जब चंद्रगुप्त, जो चाणक्य पंडित जी आप जानते हैं, कैसे चंद्रगुप्त को स्थापित किया राजा मौर्य डायनेस्टी में, ये भी आखिरी रिसेंटली तक कलयुग तक
उनका पूरा डायनास्टीज का वार्तालाप है भगवत में, डिस्क्रिप्शन है पूरा। और फिर आखिरी में भगवान का जो इनकारनेशंस है, कितने कितने अवतार है भगवान का, इसके बारे में और भगवान के लीलाओं के बारे में बताए गए हुए। तो आज के लिए हम लोग ये 18 पुराण के बारे में, 18 मेजर पुराणस जो है उनके कितना हिस्सा है, कितने कितने वर्सेस है, ये एक चार्ट मैंने पेश किया कि ये 18 पुराणस कौन कौन सा है। जैसे पहले ब्रह्म पुराण आप देखेंगे, आपके मैं अपना कैसा देख रहे हैं, ये ब्रह्म पुराण जैसे है, उनके कितना वर्सेस है, 10,000 वर्सेस है। तो एक एक पुराण का नीचे में लिखा है यहाँ पे कितने कितने वर्सेस है एक एक पुराण में। और हमारा जो भगवतम है, जो भगवत पुराण है ये बीच में, उसमें 18,000, 18 के का मतलब है 18,000 वर्सेस है। सब मिला करके जितने पुराण सब मिला करके we have 399,600 verses। तो ये सब पुराणों का जो रचना किया है व्यास देव जी, ये सब कंपाइल करके उन्होंने महाभारत भी कंपोज किया। महाभारत जो है हमारा इतिहास कहते हैं, एपिक इतिहास, महाभारत जो 1 लाख वर्सेस है। और रामायण, ओरिजिनली रामायण जो है बहुत लोग नहीं जानते, जो रामायण है ओरिजिनली ब्रह्मा जी से रिलेटेड है, ब्रह्मा जी को दिए थे। और वो 1 बिलियन वर्सेस में, जो रामायण ब्रह्मा जी को मिले वो 1 बिलियन वर्स से है। और नारद जी उनको समराइज किया था वाल्मीकि को। हम लोग सब जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखे हुए हैं, राइट, लेकिन ये एक समराइज वर्जन है जो नारद मुनि ने पेश किया, क्योंकि वाल्मीकि के गुरु नारद मुनि हुए थे और नारद मुनि ने ये समराइज वर्जन वाल्मीकि जी को दिया। ओरिजिनली ब्रह्मा जी को मिले थे और 1 बिलियन वर्सेस था उसमें। और जैसे वाल्मीकि ने प्रेजेंट किया राम कथा अलग अलग लोगों को, और आप फिर अपना तुलसीदास भी आए बाद में जो रामचरितमानस के रूप में भी पेश किए। तो ये सब हमारे पुराण और इतिहास को मिला करके पूरा हिस्ट्री जो लिखा है, ये कम से कम 525,000 वर्सेस है। अगर कोई कहता है कि दिस इज मिथ, दिस इज जस्ट स्टोरीज, अगर स्टोरी लिखे क्यों हम 1 बिलियन वर्सेस लिखें, क्यों हम 525,000 वर्स लिखें? स्टोरी तो शॉर्ट फॉर्म भी हो सकते थे, मैक्सिमम एक किताब में 100 पेज 1000 पेज हो सकते थे, लेकिन 525 verses compiled in our Itihas and Puranas, that's not a joke. ये सबूत है हमारे वैदिक शास्त्र के द्वारा कि ये सब हिस्सा जो है वो वास्तविकता में हुए। अगर आप मथुरा जाएंगे, वहां पे कृष्ण भगवान का स्थान है, जन्म स्थान है। अयोध्या में राम जन्म भूमि है। पूरा भारत में अलग अलग लीला स्थल है, मीन्स there are different pastimes of Lord Ram and Krishna at different places, especially in Vrindavan, which proves the existence of the Vedic civilization. There is जैसे हिमांशु जी ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि we have Dwarka city which is submerged in the ocean in Dwarka, and the Archaeological Society of India found the whole city there. So these are archaeological proof. We have scientific proof, we have archaeological proof, we have shastric proof that our Vedic civilization was existing at a point of time, and it's real. It's not myth. There's a difference between mythology and history. तो भारत में सब लोग बोलते हैं हमारे मिथोलॉजी, हमें मिथ, ये अंग्रेजों का देन है कि ये मिथोलॉजी बताया, क्योंकि मिथोलॉजी का मतलब है जैसे ग्रीक मिथोलॉजी, जैसे पढ़ाई करते हैं ग्रीक, कुछ लोग जब पढ़ाई करते हैं यूनिवर्सिटी में तो ग्रीक फिलोसॉफी पढ़ते हैं। तो ग्रीक मिथोलॉजी में ज़ीउस है, द गॉड ऑफ मेन गॉड, अलग अलग भगवानों का नाम आता है, which is created by imagination, man made, and they accepted man created features. तो ये मिथ है। मिथ का मतलब है कि अपना प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन,
लेकिन हमारा शास्त्र इज नॉट ए प्रोजेक्ट ऑफ आवर इमेजिनेशन, इट्स नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ आवर इमेजिनेशन। हमारे शास्त्र जो है वो साक्षात हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो इस ए पॉइंट ऑफ टाइम इट हैपेंड। और जाते जाते मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि मथुरा में एक पिलर है, इसको कहते हैं नेक्रोमोनिकस पिलर, जो एक फर्स्ट ग्रीक एम्बेसडर आए थे और ये रेस किया था। ये ग्रीक जो आया था व्यक्ति, वो पहला कृष्ण भक्त था फॉरेनर में, जो आकर के उनको कृष्णा के ऑनर पे उन्होंने ये पिलर रेस किया। अगर आप मथुरा में जाएंगे वो आप देख सकते हैं। तो ये प्रूफ है कि हमारे जो कल्चर है बहुत अप्रिशिएट करते थे लोगों को। और एक किताब है वैदिक प्रूफ ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, जो हम बाद में बातचीत करेंगे इसके बारे में। अलग अलग जगह पे वर्ल्ड में उनका प्रूफ है कि कैसे वैदिक सिविलाइजेशन वाज ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। और हम लोग भगवत पुराण के बारे में भी बताया गया, जैसे अलग अलग पुराण 10 सब्जेक्ट्स मैटर्स होते हैं: सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनमंत्र, इश, नुक्त, निरोध, मुक्त एंड आश्रय। हम लोग ये चर्चा किया। लेकिन आज का जो मेन चीज है ये है कि जो भगवत है ये भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप का मतलब भागवतम में इस ये श्लोक भी है, लेकिन खास पद्म पुराण में बताया, पादो यदि यो परतम द्वितीयम तृतीयाहर्यम कथितम यद उरु नावेस्तस्ता पंचम एव षष्ठो भुजेन्द्रानंदोरगम तथायन्यो कंतस्तु राजन्नवानो यदियो मुक्तारविंदम दासनं प्रबुधम एकादशो यस्यालोकतपातं शिरापेस्तु द्वादश एव हाति त्वम् आदिदेवं करुणानिधानं तमवर्णं सुहितावतारम् आपर संसार समुद्र सेतुं भजन् हे भगवत्ता स्वरूपम् अत्र सर्गो विसर्ग यत्र याना पुराशम आदया मदवर्स्ता निरोधो मुक्तिर आश्रयः। तो ये जो पद्म पुराण है उन्होंने इसमें बताया गया है कि अलग अलग स्कंद है भागवतम का, कौन सा बॉडी पार्ट्स है कृष्ण भगवान का। जो हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड कांटो जो है, पहला और दूसरा स्कंद है, वो भगवान का चरण विंद है। और जो तीसरा और चौथा स्कंद है वो भगवान का टाइस है, जानू। फिर पांचवा वो भगवान का नाभि, छठवां वो भगवान का छाती, और सातवां भगवान का बाजू, सातवां और दो बाजू, और नौवां भगवान का जो कंठ, और 10वां भगवान का मुख अरविंद, और 11वां भगवान का जो फोरहेड है, और 12वां भगवान का सर। ये पूरा श्रीमद् भगवत, जैसे सिख धर्म में जो सिख परिवार के लोग वो गुरु ग्रंथ साहिब का पूजन करते हैं, जो मुसलमान है वो कुरान का पूजा करते हैं, जो क्रिश्चियन है वो बाइबल का पूजा करते हैं। हम लोग भगवत का पूजा करना चाहिए, क्योंकि वो स्वरूप ही कृष्ण है, भगवान का स्वरूप बताया गया। तो ये 12 स्कंद है, पूरा भगवान का स्वरूप। आपके घर में अगर आपका पास भगवत है, उसको पूजनीय है, ध्यान रखना चाहिए कि नीचे नहीं रखना चाहिए, उसको पूरा आदरणीय से पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए। We have to put it in a higher place। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब कैसे रखते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर में रखते हैं, वैसे ही कुरान को कितना अच्छी तरह से कवर करके रखते हैं, ऐसे भगवत को ऐसे किताब कभी अपने कुर्सी ऊपर, मेज के ऊपर, कुर्सी के ऊपर नहीं रखना चाहिए, मेज के ऊपर या अपना एक जगह होना चाहिए जहां पे आप किताबें रख सकते हैं भगवान का, मंदिर के अंदर, और पूरा आदरणीय श्रद्धा से उनका पूजा करना चाहिए। तो भगवंत जो भगवत है वो पूरा भगवान का स्वरूप है।
और ये it says that here, जो हमारे जैसे ये पहला स्कंद है, ये जो प्रश्न है, there's 6 questions that being asked by these sages in Nimesharanya. They ask 6 questions, and then the first canto है, is an introduction to these 6 questions. तो जो प्रश्न निमेशरण्य में वार्तालाप हुआ, ये इसके बारे में पहला स्कंद में होता है। परीक्षित महाराज का भी वर्णन आता है कि परीक्षित महाराज के कैसे जन्म हुए, कैसे भगवान उत्तरा के घर में आकर के रक्षा किया परीक्षित महाराज को, और कैसे इस मीटिंग करे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के कैसे मिले, इसके बारे में चर्चा होता है। और तीसरा और चौथा स्कंद में आप देखेंगे इसमें अलग अलग क्रिएशन के बारे में बताया गया, क्योंकि सर्ग और विसर्ग का मतलब क्या है कि क्रिएशन कैसे होता है, अलग अलग मनु ब्रह्मा जी से कैसे प्रकट होता है, और वहां पे लॉर्ड वरादेव जी का भी लीलाएं होते हैं। पांचवा स्कंद में आपको पूरा ज्योग्राफी यूनिवर्स का मिलेगा, भूमंडल, स्ट्रक्चर द होल यूनिवर्स, हाउ दिस होल द क्रॉस सेक्शन। आई वाज रियली अमेज्ड कि जो डायमेंशंस यूनिवर्स का है वो मैच करते हैं, जो अभी वैज्ञानिक लोगों का जो डायमेंशंस यूनिवर्स का अपने भगवत से मैच करते हैं, और ये को कितने हजारों करोड़ों साल पहले ये ज्ञान अपने भगवत में है। और छठवां स्कंद में पोषण के कैसे भगवान अपने भक्तों का वो रक्षा करते हैं, कैसे अगर लीलाएं हैं इसमें, कैसे जो लोग धर्म के खिलाफ जाते हैं उसका क्या प्रतिक्रिया है, उसका क्या होता है उन लोगों को, और जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं उसको क्या, कैसे पुरस्कार मिलता है, उनको क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं भागवतम। और सातवां स्कंद ये अलग अलग प्रकार का शुभ और अशुभ स्थिति बताते हैं कि क्या क्या होता है, description of inauspicious and inauspicious inclination। तो जो वृत्ति होते हैं, हमारा वृत्ति होता है कहाँ ले जाते हैं हम लोगों को, और अपना जो डिवोशन, जो मिक्स्ड स्थिति होता है, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ये करें अच्छा होगा, कभी हम सोचते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये पाप है, पाप पुण्य क्या होता है, ये सब डिस्क्रिप्शन बताया गया यहाँ पे। और आठवां तो उसका परिणाम भी, ये पाप करेंगे उसका परिणाम क्या होता है, ये भी कथा के अनुसार बताते हैं। फिर आठवां अलग अलग डायनेस्टी, जैसे मैंने बताया था आपको, यदु डायनेस्टी, जैसे कृष्ण भगवान मून डायनेस्टी से हो रहा है। दो वंश है, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश। We have two dynasties. One is starts from the sun and the other starts from the moon. तो कृष्ण भगवान is from the Chandrama, from the moon dynasty, and राम भगवान is from the sun, सूर्य dynasty. इसके बारे में बताते हैं, अलग अलग मनवंतर के हिसाब से अलग अलग वंश के बारे में बताते हैं आठवां स्कंद में। फिर नौवां स्कंद में इस डिस्क्रिप्शन ऑफ जो मैंने बताया था कि सूर्य और चंद्रमा डायनेस्टीज, वो आता है नौवां स्कंद में। और आठवां में अलग अलग डायनेस्टीज होते हैं, जैसे मनु अवतार, मनु डायनेस्टीज का आता है उसमें। 10वां स्कंद में पूरा भगवान श्री कृष्ण का लीलाएं के वर्णन होता है, वृंदावन में, मथुरा, द्वारका और हस्तिनापुर का जो लीलाएं हैं, कृष्ण का उपलंस है, ये सब इसमें है। और 11वां स्कंद में लिबरेशन, मुक्ति के बारे में, मुक्ति और कैसे ये अलग अलग उद्धव गीत, जैसे भगवद गीता है वहां पे उद्धव गीत भी है, और कैसे भगवान अपनी लीला को समाप्त करके धाम चले जाते हैं, उसके बारे में है। और 12वां स्कंद आखिरी में, 12वें स्कंद में भगवतम का महिमा आते हैं, और इस कलयुग में क्या क्या होता है उसके बारे में अच्छी तरह से उसका वार्तालाप होता है। तो आगे हम देखते हैं कि एक समराइज वर्जन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोग भूले नहीं। तो ये एक देखते हैं अगर मैं कर सकता हूं उसको यहाँ पे। ये नहीं आ रहा है, हाँ इसमें नहीं आएगा, कोई बात नहीं। तो ये एक आ रहा है, आप लोग चेक कर सकते हैं
इस आखिरी में मैंने बता रहा था आप लोगों को कि हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। तो ये जो हमने पोस्ट किया ये पावर पॉइंट, ये आपके गूगल क्लासरूम में है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उस पावर पॉइंट को अपने गूगल क्लासरूम में जा करके उसको डाउनलोड कीजिए और उसको देखना साइड बाय साइड। और ये आपका एक्टिविटी क्या होगा आज, मैं आप सब लोगों को, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग जो है आज 20 स्टूडेंट हैं, तो मैं सब लोग आपको एक अलग अलग ग्रुप में डालूंगा आपको, और आप अपने दोस्तों के साथ ये प्रश्न जो है आपको सॉल्व करना है। तो ये मेन टॉपिक है, 3 ग्रुप है। पहला ग्रुप है the topic of the Vedas and time frame. So you have 3 questions there. आपका 3 प्रश्न है, आप लोग मिल करके ये प्रश्न का जवाब ढूंढना है और आपका एक ग्रुप लीडर सेलेक्ट करके फिर आप पेश करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे। ये आपका पहला ग्रुप जो है, ओके। और जो सेकंड ग्रुप है उनका सेक्शन है, उनका प्रश्न है पुराण और एपिक्स के बारे में। और जो तीसरा ग्रुप है वो युग के बारे में है। और जो जहां पे आप लोग जाना चाहिए, this is the place where you go. You have to click on the link that is in the PowerPoint. ये एक आर्टिकल है, इसके ऊपर आपको पढ़ करके और हमारे जो पावर पॉइंट्स मैंने पोस्ट किया गूगल क्लासरूम में, उसको देख करके सब मिल करके एक ग्रुप वर्क करके ये पेश करना पड़ेगा आप सब लोग। अब मैं शेयर करूंगा, मैं इसको स्टॉप करूंगा, मैं गूगल क्लासरूम में जाऊंगा, गूगल क्लासरूम में शेयर करना चाहूंगा। एक मिनट, ये गूगल क्लासरूम में जा करके मैं आपको मदद करूंगा कैसे वहां पे जा करके देखना है। एक मिनट, तो एक मिनट, गूगल क्लासरूम या आपके गूगल क्लासरूम पे पता नहीं आप लोग जाते हैं, कम लोग जाते हैं, लेकिन आज आपको मौका मिलेगा देखने के लिए। आपके गूगल क्लासरूम में जाना चाहिए जब भी मौका मिलते हैं आप लोगों को, क्योंकि मैं आपने सब लोगों को गूगल क्लासरूम में डाल दिया। तो अभी मैं शेयर करूंगा इसको, आप देखेंगे गूगल क्लासरूम। 1 सेकेंड। Janu, where is my how do I share that? I think I have to bring that thing here. The Google Classroom. Yeah. मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं शेयर करता हूँ अभी। शेयर स्क्रीन। Can you return to the normal basic one? Yeah, see. So where is I just open a file. No, but this was be my computer. Maybe I should do screen 1. Share screen 1. And then I'll go here. Okay. Google Classroom is here. Okay. आप लोग मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं? जो मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं, हिमांशु का नाम देख पा रहे हैं आप लोग, तो एक थम्स अप कीजिए। ओके, थम्स अप आप कर सकते हैं अपने। या वेरी गुड, प्रियांशु देख सकते हैं। तो ये देखिए गूगल क्लासरूम में हिमांशु का मैंने पूछा था कि हम बात कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो मैं पहले इसको दिखाऊंगा आप लोगों को। देखो उन्होंने हिमांशु प्रभु जी ने ये लिखा, ये प्रश्न का जवाब दिया था, बहुत अच्छी तरह से लिखा उन्होंने। तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ क्लास करने से पहले।
एक राइटिंग पीस है, सो हम थोड़ा पढ़ लेंगे इसके बारे में। देखो, जो वीडियो हमने पेश किया था, उन्होंने लिखा कि ही इज सेइंग द ट्रूथ, दिस इज a reality of today's society. We are both born in a Hindu family, and people say themselves Hindu, and they are even ready to prove themselves. तो scriptures, Puranas, Upanishad के बारे में बताया। Nowadays people see everything visually through television, YouTube videos, and it is not true sometimes, right? In the movies, what people show in the movie, people believe in those movies and they get easily convinced by them. People don't think intellectually before getting convinced by someone else, because most of the people in Hinduism don't know what is right and what is wrong. And so the result is people don't actually realize that other people are trying to spread hatred, wrong information in our religion. This is a writing piece that हिमांशु ने प्रेजेंट किया था, और यहाँ पे मैं चाहता था कि आप लोग सब लोग यहाँ पे आपके राइटिंग पीसेस लिखें, क्योंकि ये आप अभ्यास करेंगे। आप सब 10, 11, 12 में हैं, जितने अभी राइट करेंगे आपको इंग्लिश में भी अच्छा डेवलप करेंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा रहेंगे। इसलिए ये राइटिंग पीसेस यहाँ पे आप लोगों को लिखना चाहिए, डेवलप करना चाहिए राइटिंग पीसेस। यहाँ पे आप कभी आप आकर के पोस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन मेन चीज जो आपको दिखाना चाहता था मैं गूगल क्लासरूम में, ये आप अगर ये देख पा रहे हैं तो मुझे एक, हाँ जी, you can see my screen with the Google Classroom with Radha Krishna picture. Give me a thumbs up. Very good. Everybody can see that. So now when you're going on the Google Classroom, you'll see I posted here. I posted 2 PowerPoints. Today's PowerPoint is Srimad Bhagavatam, and then the Hinduism PowerPoint that we did before. So what you're going to do is you're going to click on the PowerPoint here. When you click on this, right, you can download the PowerPoint, right? And then when you download the PowerPoint, you will go to the questions, because each group will have a question. So when you सबका जो ग्रुप है अलग अलग प्रश्न होंगे, तो आप लोग PowerPoint पे जाएंगे और PowerPoint पर आप डाउनलोड करेंगे। ये सबसे पहला चीज है जो आपको करना है। ओके, कोई प्रश्न है? मैं आप लोगों को ग्रुप्स में डालूंगा। प्रश्न, अगर कोई प्रश्न है आप पहले ही भी बता देना अभी, और मैं आपके ग्रुप में भी जाऊंगा। तो मैं रेडी, I'm going to put you all in groups. तो अभी ब्रेकआउट रूम में जाऊंगा मैं। ब्रेकआउट रूम, where's the breakout room? Okay, 1 second. The breakout room is not here. Yeah. नहीं आ रहा है। 1 second. Let me just stop share. मैं आप लोगों को ब्रेकआउट रूम में डालूंगा। नहीं, ये ऑप्शन तो देना चाहिए था। No, it should be here. Usually when I do that, it's here. Huh? Oh yeah. माता जी, Yes, हाँ जी प्रभु। ये हाउस कौन है यहाँ पे? मेरा नाम हाउस पे है? हाँ, किशोर जी हैं। नहीं, मुझे हाउस बनाना चाहिए ताकि मैं ब्रेकआउट रूम का, नहीं, को-होस्ट है ना आप, यू आर को-होस्ट। लेकिन यहाँ मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा है ब्रेकआउट रूम करने का। एक मिनट, मैं आपको होस्ट बना के देखता हूँ एक बार। हाँ, आप हाउस बनाना ताकि मैं उन लोगों को सब एक ग्रुप में भेजूंगा। देखिए, अभी ट्राई करिए। यस, यू आर होस्ट नाउ। Yes. Where it is?
यार anyway listening to all the- ओके तो अब ऐसा कीजिए क्योंकि अभी आप शुरू कीजिए सब लोग उस क्लिक करें मुझे बताना अगर आप उस लिंक पे जा पाए अपने पावर पॉइंट लिंक पे गए और उसको पे क्लिक कीजिए सब लोग और अनम्यूट करके मुझे बता देना अभी अगर कोई प्रश्न है कि आप लिंक पहुंच पाए या नहीं मैं वैसे ही उस लिंक को शेयर करके बता रहा हूं आपको कैसे लगेगा 1 मिनट में तो ये आपका पैरा स्टूडेंट एक्टिविटी होंगे इस पर तो आप इसको क्लिक करेंगे हम लोग इसको ऊपर कैन यू अनम्यूट माता जी क्या बच्चों को अनम्यूट कीजिए ताकि मैं बातचीत कर पाऊं उन लोगों से कि वो लोग इस पर गए या नहीं एवरीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। प्रभु जी 1 मिनट टाइम दीजिए थोड़ा। ओके कहाँ गया अभी था वो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा आप लोग उस जो लिंक है आप खोल सके या नहीं खोल सके मुझे जानना चाहिए कि आप लोग लिंक खोल पाए या नहीं पाए प्रभु जी आप इसे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं? नहीं आप लोगों को गूगल क्लासरूम में जा करके उसको ओपन करना पड़ेगा क्योंकि अगर हमारे साथ काम करना है आप लोग सीखना चाहिए कि कैसे गूगल क्लासरूम में काम करने का यू हैव टू गो ऑन दैट पावर पॉइंट को जा करके फिर उसको क्लिक करना पड़ेगा अगर आप फोन पे हैं फिर व्हाट्सएप पर भेजूंगा मैं और अगर आप लोग फोन पे हैं तो फिर आपको व्हाट्सएप इस्तेमाल करना पड़ेगा हरे लेकिन कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी ये गूगल में 11th स्लाइड है पीपीटी में। हाँ जी प्रभु जी हम फोन पे कर रहे हैं क्लास अटेंड। फोन पे भी जो इजीली हो जाएगा, पीपीटी पे आप क्लिक करोगे 11th स्लाइड आएगी। अच्छा वेरी गुड अब बता देना उन लोगों को कि अगर मैंने पोस्ट नहीं किया व्हाट्सएप पे लेकिन आप जाएंगे तो आप Google देख पे। पाएंगे देखो देखो मेरा अभी खोल गया देखो ये जो टेक्स्ट आप देख पा रहे हैं जो देख पा रहे हैं मुझे एक इंडिकेशन दीजिए कि एक चैट बॉक्स में कि आप मेरे स्क्रीन देख पा रहे हैं सबको यही टॉपिक मिलेगा यही वेबसाइट है जो पढ़ना पड़ेगा सब लोग और इस पर आपको प्रश्न जो मैंने दिया इसका जवाब देना पड़ेगा इसको पढ़ करके शेयर कर सकता हूँ या इस शेयरिंग मैं शेयर कर रहा हूँ तो आप देखना चाहिए अभी you can see they should be able to see that can you see there if you go online प्रभु जी रेवती दिखाई माता दे रहा है। दिखा रहे हैं आप लोग जी जी Yes, दिख प्रभु रहे हैं। जी क्लियर है। very good so when you see this is a place where you have to go and now those who are not able to open मैं आप लोगों के लिए ओपन किया आप जैसे 3 ग्रुप है तो पहला टॉपिक ये है 4 वेदा के बारे में तो जिसका ग्रुप है
तो वहां पे जाएंगे 4 वेदस में, और उसके बाद पुराण है, और उसके बाद ये युगस के बारे में है। तो ये जो प्रश्न है, मैंने 3 प्रश्न दिए हैं, आप सब लोगों को जवाब ढूंढना है। तो आप लोग का अपना प्रश्न का जवाब शुरू कीजिए। इन द मीन टाइम मैं कुछ देखता हूँ यहाँ पे। प्रभु जी इस एक बार activity ब्रेकआउट रूम ट्राई करिए। मैंने वो सेटिंग बैकएंड से कुछ चेंज की है, अनेबल किया है, वो एक्चुअली डिसेबल था। अच्छा, बाय चांस अगर होता है तो, अदरवाइज नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। वो डिसेबल था है, फिर भी नहीं देख हाँ, पा रहा। या maybe I should go to the main thing here, and then yeah, when you have participants, you just click on this and you'll get it. Yeah, he may make, I don't know. मैं तो भी आ नहीं रहा। एक बार मीटिंग एंड करके फिर करना पड़ेगा। मे बी नेक्स्ट टाइम विल डू। ओके, नेक्स्ट टाइम विल डू। अभी आप लोग प्रयास करो कि ये प्रश्नों का जवाब लिखें किस, और आप लोग प्रेजेंट करेंगे इसके बारे में। और मुझे बच्चों को देखना है, बातचीत करना है, तो इसीलिए था कि आप अनम्यूट करना लोगों को, ताकि वो प्रश्न पूछें। अगर मेरा कोई प्रश्न और ठीक से नहीं आ रहे हैं या समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप कृपया मुझे चैट बॉक्स पे कर सकते हैं, या आप ऐसे ही पूछ सकते हैं। प्रभु जी ने मैंने सब बच्चों को कमांड दे दी है कि सब बच्चे प्लीज अनम्यूट हो जाएं। Himanshu is always on task. बच्चे क्लियर है? प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, आप फॉलो कर पा रहे हैं? अदरवाइज यू कैन आस्क। क्लियर है? यस प्रभु जी, इट्स क्लियर। यस प्रभु जी। तो तीन ग्रुप है, आप लोग किसी ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं आपस में, और किसी ग्रुप में आप ज्वाइन करके प्रश्न जो आपको अच्छा लगेगा, इजी है, वो प्रश्न आंसर कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रश्न सीधा साधा नहीं है, सो यू रिक्वायर टू थिंक अबाउट इट। इस एज ग्रुप के, जैसे आप लोग साइंस पढ़ते हैं 10, 11, 12 में, आपको थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है अपने एनालिटिकल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एनालिसिस करना पड़ता है, उनको एप्लीकेशन करना पड़ता है। ऐसा सीधा साधा कुछ प्रश्न है, सीधा साधा, जैसे among 4 Vedas which one is the oldest one and why। तो उस आर्टिकल को पढ़ करके आप ढूंढ करके बता सकते हैं कि वहां पे कैसा है, क्या बातचीत किया, वो ऑथर है, उसने कैसे पेश किया उस प्रश्न को। You also should know. So I'll give you 5 more minutes. क्या टाइम हुआ अभी? You again 10 o'clock right now. We did for 1 hour. Yeah. So we'll have we'll be giving you like 5-10 Prachi minutes. is saying something. Yeah, Prachi is saying something, Prabhuji, in chat. In chat. मैं chat box हरे कृष्णा खोल प्रभु कर, जी। हाँ जी बताइए। Yes, प्रभु जी, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप पर वो गूगल क्लासरूम का लिंक नहीं है, तो मैं उसको ओपन कैसे करूंगी?
गूगल क्लासरूम का लिंक मैंने कब से भेजा? 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले मैंने भेजा। अगर आप गूगल अपने व्हाट्सएप पे जाएंगे वहां पे लिंक है। मैं फिर से भेजता हूँ बेटा, ठीक है? पर मैंने आज ही ओके अच्छा वो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। हाँ अच्छा, नया ज्वाइन किया आपने? यस इसी हफ्ते यस ओके, प्रभु जी सेंडिंग टू मैं यू भेजता हूँ। हाँ मैं भेजता हूँ। and then you can just connect on the Google Classroom. I will request everybody to join Google Classroom, and we do all our work on Google Classroom. So from now on, now you will see that how we are using Google Classroom so much. So that my request to everybody to join Google Classroom. And this exercise will help you in your, if you anybody is studying English literature, anybody studying English as a second language, anybody studying history, anybody studying science, this activity will really help you to develop the skills necessary both at school and in this class. So this is a very good activity for you guys for every week. I will encourage, yeah, and I will encourage students to write. You have to keep writing. जितने जितने आप write करेंगे उतना ही आपका skill develop होगा. So this activity is a writing activity. ये आपका style, writing style, analysis, कैसे आप पेश करते हैं, ये सब सीखना पड़ता है. जैसे आप स्कूल में सीख रहे हैं ऐसे ही इसको अप्लाई करेंगे यहाँ इसमें, इस क्लासेस में. So we going, अगर कोई प्रश्न है साइड में आप पूछ सकते हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं पढ़ सकूंगा यहाँ पे, और आप मुझे सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं डायरेक्टली. Himanshu, where are you? You're able to answer a few questions, Himanshu? Yes, Prabhuji, I'm here. You're okay, we're able to open the document in the Google Classroom from the both slides and refer. Which topic you're doing? I don't know, Prabhuji. I will see. Oh, you didn't decided yet? No, I didn't decide okay, yet. it's okay. It's okay, okay. You're reading then. You're reading the article. Yes, Prabhuji, I'm reading. Good job, good job. तो प्राची जी आपने लॉग इन हो पाया आपका? प्राची जी, could you log in हुआ? Oh, very good. Oh, very nice. Divisha is here or she is not here? We didn't hear Divisha today. प्रभु जी, दिविशा को थोड़ा नेट प्रॉब्लम है, उन्होंने चैट पे लिखा था. अच्छा, उसको आप चैट कर सकते हो, उसको पूछ लेना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. अच्छा रहेगा. और बाकी तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि प्रभु जी, जो गूगल क्लासरूम है वहाँ पे जो रिपोर्ट आती है बच्चों की, वहाँ पे हमें बच्चों का पूरा रिजल्ट आ चुका है. तो उसमें काफी बच्चों ने हमें ज्वाइन किया था. उसमें दिविशा, हिमांशु, जैनी, 7-8 बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स है उनका, जो कंटिन्यू उन्होंने तीन जो आपने उन्हें क्विज़ेस दिए थे वो उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं. Oh, very good. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगी इन बच्चों की, जो हमें कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं. ओके, थैंक यू. चलो हम देखते हैं. स्नेहा, आप वो आर्टिकल पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं? स्नेहा, मैं एक एक को पूछूंगा मैं भी. स्नेहा, अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, स्नेहा ने. रिया मिस्त्री सूरत से. रिया, यस प्रभु जी. आर्टिकल पढ़ रहे हैं? यस प्रभु जी. वेरी गुड. हैनी महसाना से. हैनी, यस प्रभु जी. हाउ इज इट गोइंग? आपका जो प्रभु जी पढ़ रहे हैं. वेरी गुड. तृप्ता, यस प्रभु जी. कौन से क्लास में है तृप्ता? 11th. ओह, ये तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज आपके लिए. आप कौन से सब्जेक्ट करते हैं? इंग्लिश करते हैं और लिटरेचर करते नहीं? हाँ करते हैं. हाँ, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा फिर. प्रियांशु, यस प्रभु जी, पढ़ रहा हूँ.
Okay, you do what subject? Which class you are, Priyanshu? In 9th. Okay, yeah, that's good. You do in English. If you go English, you will like this. What we're doing this exercise. Raghav Sharma, जी प्रभु जी। आपने आर्टिकल पढ़ रहे हैं? जी प्रभु जी। कौन से क्लास में हैं आप, राघव शर्मा? प्रभु जी 8th standard. Okay, if you have difficulty, let me know. And let's see who is there. Ayush Raturi. Ayush ji. Hare Krishna, Ayush ji. Bhargav is there. Bhargav. Bhargav. जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ प्रभु जी। कैसा लग रहा है वो टेक्स्ट? काफी डिफिकल्ट है पढ़ने में? नहीं प्रभु जी ठीक है। ओके, कौन से क्लास में है भार्गव? 9th। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर ये पढ़ करके वो जवाब दे देना। पहला टॉपिक हम लोग ऐसा करते हैं आज। Everyone can just use the first slide. It means when you're going to answer questions, just make it, because we couldn't do in groups, so we'll take the first topic today, which is Vedas and time frame. So क्योंकि time अभी निकल रहे हैं, so we don't have much time to read the whole thing, so I'll request everybody to read only the Vedas and the time frame, the first part of the article, and answer these 3 questions. Okay, you don't need to read the whole article. Read only part of the article, which is the first part only, which is about the Vedic literatures and the time frame. Okay, then we are going to do that next week. We're going to continue for the other one. Understood, everybody? So now I'll like you all to stop reading and answer the questions. So you're going to answer the first 3 questions. The first question is, amongst the 4 Vedas, which one is the oldest and why? And the second question is, on what Buddhist Western theorists calculate the time frame of Vedic literatures? And third question is, what is the difference between mythology and history, which we discuss about? And what are the facts that you can retrieve from the text with the subtopics Rig, Yajur, and Mahabharata era? Okay, तो ये 3 प्रश्न हैं जो आप लोग जवाब ढूंढना है, and I'll give you like 3-4 minutes to answer one of them. You can choose any one of the questions. You don't need to answer all the 3 questions. You just answer one question, and then as soon as you get an answer, send me on the chat box, or you can openly say, okay, Prabhu, I want to answer. So we get a chance for people to answer the question. You can answer in Hindi as well. हाँ, आप लोग हिंदी में भी आंसर कर सकते हैं. So again, everybody, you should be stop reading right now and answering the first 3 questions, and you can choose any of these 3 questions. आप लोग चुन सकते हैं, ये जरूरत नहीं, अगर आपको 3 प्रश्न जवाब दे सकते हैं तो 2 दीजिए, या आप 2 प्रश्न का ले लो, या 3 प्रश्न, आपके हिसाब से है, लेकिन आप 1 प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं. और गूगल क्लासरूम में मैं इसको पोस्ट करके एक जगह बना दूंगा जहां पे आप प्रश्न वो पोस्ट कर सकेंगे. So yeah, that would be the activity for this week. तो गूगल क्लासरूम में मैं एक जगह बनाऊंगा ताकि आप लोग वहां पे पोस्ट कर सकेंगे आपके प्रश्न का जवाब. Okay, but for the time being, I want you just to write an answer. In 5 minutes, I will just ask anybody to volunteer to at least try.
प्राची प्लीज म्यूट योर सेल्फ बेटा. Done. What's the time? So we have 1 more minute and then we'll stop. Okay. तो आप मुझे होस्ट या कोस्ट बना सकते हैं? फोक किशोर. मैं कहाँ पे And जाना you है? can, yeah, and you can disable annotation. Okay. पार्टिसिपेंट्स में जाके राइट फोक किशोर पे एरो होगा, वहां से फिर आप बना सकते हैं. प्रभु जी रिया ने हमें बहुत अच्छा उत्तर दिया है, तो आप तो उसको बोलना कि अपने उत्तर अभी तो हम लोग क्लोज करेंगे. जी तो जी प्लीज एवरीबॉडी who wants to volunteer to answer, just like we start with Ria, since Ria is giving a good answer. Let us start with Ria. रिया रिया आप please, बोल सकते हैं प्लीज. रिया रिया आप क्लास में है बेटा? रिया यस. जो आपने आंसर दिया है प्लीज आप उसे बोलिए. Ria Mystery लिखा है कि अथर्ववेद is the oldest Veda. That's very nice. चलो रिया आप आपका आवाज सुनना चाहते हैं हम लोग. प्रभु जी, Atharvaved is the oldest Veda because its magical path and verses in the Veda is very important, and it tells about that God and all that. Okay. मैं आपका जो जवाब आपने लिखा मैं फिर से बताऊंगा सब लोगों को, ताकि आवाज नहीं ठीक से नहीं आ रहे थे. तो अथर्ववेद द ओल्डेस्ट वन आप कह रहे थे क्योंकि उनका जो मैजिकल वर्सेस है. अथर्ववेद रिप्रेजेंट ए पैरेलल रिलीजन. इट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद द रिलीजन ऑफ ऋग्वेदा, सेंटर्ड वर्शिप. या वेरी गुड. इसका मतलब ये है कि दूसरे वेदों में जैसे ऋग्वेद में सामवेद है और यजुर्वेद में कुछ श्लोक है जो अथर्ववेद है उन पे आप पाए जाएंगे. मीन्स those shloka in other Vedas appears. The shloka of Atharvaved appears in the other Vedas. That's a proof that Atharvaved is the oldest one. So Prabhupada ji कहते हैं कि there was only one Veda in the beginning and the name was Atharvaved, but it was written in Sanskrit, which is so difficult for people to understand, and that's why Shri Vyas Dev ji ने ये अथर्ववेद को 4 वेद में बनाया, ऋग, साम, अथर्व एंड यजुर, which is a more understandable Sanskrit, more digestible Sanskrit. तो यहाँ इस आर्टिकल में ये बताया कि हिस्सा जो अथर्ववेद का हिस्सा है वो अलग अलग वेदों में पाए जाते हैं और उनके कल्चर के बारे में बताया यहाँ इस आर्टिकल में. कैसे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, मंत्रस है, वो ट्रेडिशन पास ऑन किया क्योंकि वेदों को वो श्रुति है. रिमेंबर हम लोग पहला जब पावरपॉइंट किया था तो हम लोग श्रुति का बात किया था. तो कैसे वेद के द्वारा अपने अपने अलग
जो समाज है, जो फैमिली है, वो फैमिली के द्वारा पास ऑन होता है by word to mouth. It is because of other free Vedas have content from Rig Veda. Very good. Tripta maybe acha jawab diya ke you have content from the Rig Veda. That's so nice. That is a very good point. Theraveda from Ratnavati Mataji says to everyone. Okay, it's like it says side by side with religion Rig Veda. That's very good. And then who else? That's all. I don't have any other person who wants to volunteer. Where's Himanshu? Himanshu? I'm here, Prabhuji. I'm still reading. No, you should stop reading by then. You should answer question by this time. Okay, what about the first question? Do you have any input on that? Yes, Prabhuji. I think it's a Rig Veda. Why you think it's Rig Veda? It's the oldest. It's the oldest and most important of the 4 Vedas. How do you know that? What's the Vedic. It's from the early 19th century. Where you got that information? I just found in Google. That's the point. You remember when in my lecture I said that people go on Google and find information and then they don't know what is good and what is wrong and where to get it. Remember I said that? Yes, Prabhuji. And you do the same thing that people do. That's very good. You do the same thing. That's like to explain to us, yeah, this is what people does. But if you go and analyze the article, it says there how Atharvaved, pieces of Atharvaved can be found in Rig, Sam, and Yajur. Yes, Prabhuji. That's why I told you give this article to read and analyze. And you can see that as well. Srila Prabhupada explains that. In the beginning, there was one Ved, which is Atharvaved. And then Atharvaved is divided into 4 Vedas. Because of Sanskrit was so difficult to understand. That's why he made it more understandable to people. So that is the first thing. Second thing is, you can't put there is in the article it's mentioned about the Western people. The Western theorists, they try to calculate time frame in a different type of time frame. But our history, our time is like goes thousands and thousands of years back. So it doesn't fit the Western theorist. That's why they try to put their own calculation of time on our Vedic literature. And that is described in that article. You see? If you look at this article, if you look at this article, let me share the article again. I hope I have it there. And if you read well in the article, it tells you about the Western theorists, how they're imposing their time frame on our scripture. You can't do that. Each and every culture has their own time frame. And you can't impose your own time frame onto our culture. And this is what the Western people did. The Western world, they always try to impose their time frame on ours. Now look, I'm talking about time frame of the Vedas. It says here, can you see my article? Give me a thumbs up if you can see the article. I just posted. You able to see? Ratmata ji, आप article देख सकते हैं? मैंने post किया अभी. मेरे हरी बोल. हाँ प्रभु जी, जो आपने अभी स्टूडेंट एक्टिविटी के लिए बोल रहे हैं या चैट के लिए? नहीं, मैंने शेयर किया, वो आर्टिकल को शेयर किया, मैं पढ़ रहा हूँ. आप देख सकते हैं इसको अपने स्क्रीन पे? स्टूडेंट एक्टिविटी ना प्रभु जी, वो दिखाई दे रहा है. ना, ये वाला मैं शेयर करता हूँ. आप देखो, आप देख पा रहे हैं? जी सब लोग? हाँ, इस क्या लिखा है? The time frame of the Vedas लिखा है. It is a tendency of the AIT and AMT theorists to compress the time frame of the Vedas. They का tendency है to compress करना है ताकि वो fit करें उसके time frame में. The epics of the Puranas into absurdly brief durations to suit their theories and their preconceived notions about a foreign origin of the Indian civilization. They want to prove that all Indian people came from the West through the Aryan route, which is completely wrong.
And this is what they are teaching in schools and all universities in the world. They say that the Aryan civilization, which is in North India, their origin is from the West. But Srimad Bhagavatam says the origin of each and every civilization on this planet starts from India and goes away and spread all throughout the world. You understand this? This is very, very important. So when we read things, then we understand the truth behind. And see, if you continue reading the sentence of the in this text, they place Mahabharata at 900 BC and Ramayana 500 BC, which is completely absurd because Mahabharata is a time where the Kurukshetra war happened, which is like 5,000 years back when Krishna was here. And we have our own Ashoka era calendar, which goes on, and we have all these different support for our calendar. So that's why it is very important to have knowledge at the right source. This is very, very important. If you guys are studying scripture, it is very important to look for the right source of knowledge. प्रामाणिक होना चाहिए, ये परंपरा से आना चाहिए ज्ञान. ऐसे गूगल गुरु से लेना नहीं चाहिए ज्ञान इन चीजों में. तो you have to have a प्रामाणिक संप्रदाय. प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, दिविशा ने हमारे साथ शेयर किया है, मैंने आपके साथ चैट में शेयर किया है. उन्होंने अपने व्यूज बताए हैं. एक्चुअली उनका नेट सही नहीं चल रहा, तो उन्होंने हमें चैट पे लिख के दिए अपने व्यूज. अच्छा, तो वो ये अपने व्यूज का मतलब यही है कि वो लोग गूगल कॉल के वो बता रहे हैं ना. दिस इज रॉन्ग. That's why when I give you something, you have to read it nicely, analyze the article, look for those things, and then answer. भार्गव कुछ बताना चाह रहे थे, उनका कमेंट लेके फिर बाद में हम क्लोज कर सकते हैं. We are running out. हाँ जी, भार्गव जी. सर मेरी मम्मा ने कुछ पूछना था. पूछिए. प्रभु जी, जैसे फर्स्ट सेशन हुआ था तो वो रिकॉर्डेड आ गया था, मतलब किसी का अगर मिस हो जाए वो रिकॉर्डेड मतलब पूरा वीडियो आ गया था. पर सेकंड और थर्ड, जैसे सेकंड सैटरडे और थर्ड सैटरडे मतलब क्लास हुई, कभी कोई होता है कि कभी मिस हो जाता है या कोई आ जाता है या कहीं बच्चे को जाना पड़ता है, तो वो सेकंड और थर्ड वाले का नहीं आया, मतलब रिकॉर्डेड वो नहीं आया, वीडियोज नहीं आया. I will respond, माता जी. Yeah. So actually जो अभी लास्ट में मैंने मैसेज दिया था ना, उसमें तीनों ग्रुप का प्लेलिस्ट दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया है. लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला जो मेल है ना, उसमें प्लेलिस्ट का लिंक दिया है. तो उसमें आप क्लिक करेंगे ना किशोर ग्रुप में, तो आपको सारे सेशन दिखेंगे उसमें. ओके ओके, थैंक यू. यस, हरे कृष्ण. So thank you. सब बच्चे ने भाग लिया. I am very, very proud of all of you. You took part of this, and this will help you intellectually and for your English classes, for your other science classes also to analyze things. जैसे जैसे हम लोग जिस प्रोग्राम में आप लोग भाग लेंगे, you will see your skills, your writing skills, speaking skills, all this will develop. तो आज मैं कंक्लूड करूंगा अपने पावर पॉइंट से. एक मिनट, लास्ट चीज है अपना पावर पॉइंट में शेयर करता हूं. तो क्या हम लोग सीखना है, व्हाट वी शुड टेक फ्रॉम दिस इज this thing. Our takeaways from today's class is sacred scripture. A special function of sacred scripture is the power to inspire. जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारे को इंस्पिरेशन मिलता है कि और पढ़ें और जाने के लिए, हमारा जिज्ञासा बढ़ाते हैं. Reading religious scripture educates us all together, increasing our spiritual faith. जब हम religious scripture को पढ़ेंगे तो हमारा जो श्रद्धा है बढ़ेगा. Our scriptures ignite the fires of our devotion, make us feel closer. और जैसे हम पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, हम और भगवान को नजदीक आएंगे, महसूस हो गया कि भगवान हमारे साथ है. और sacred literatures acts like fuel to keep our spiritual journey. और हमें सब लोग एक spiritual journey है जो हमारा अपना spirituality, अपना realization को बढ़ा रहे हैं. और ये सब scripture के द्वारा ये हम लोग सीख पाएंगे. तो हम अगले हफ्ते मिलेंगे. और एक क्लास है ग्लोरिफिकेशन ऑफ 12 कांटो, हम लोग मिलेंगे, इसके बारे में अगले बार बात करेंगे कि कैसे भगवत इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर्स.
तो यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे और हम आशा करते हैं कि अगले हफ्ते में और तैयारी करके और गूगल क्लासरूम में ज़रूर जाइए, वहाँ पे पोस्ट करेंगे एक्टिविटीज़ और इस हफ्ते का, और आप इन एक्टिविटीज़ या क्विज भी हो सकते हैं, आप उन एक्टिविटी में भाग लीजिए। तो we'll finish by one kirtan for 2 minutes and then we'll say Hari Bol to everybody. So I'm going to sing Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Bol, 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 Hari Bol. Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Nitai Gaura. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura. Hari Bol, Nitai Go Premanande. Hari Bol. Jai Jai Shri Radha. Thank you. Hare Thank you Krishna, so सब लोग. much. Thank you. Hare Krishna बच्चों. Thank you so much. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. Hare Krishna. Hare Krishna. So Hare we'll Krishna. thank Adigve Prabhu and Ratnamati Mataji for helping to host this session together, and we thank all of you for participating. So please watch our Google Classroom again. Be connected. See you all. आप लोग लॉग आउट कर सकते हैं, हम लोग टीचर्स रहेंगे यहाँ पे. Okay, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी.